Hello everyone, welcome to Saroj Sachdeva classes. Today we'll start chapter 2 of Political Science, class 10th Federalism. In this chapter, we focus on vertical division of power sharing. In chapter 1, we have learnt power sharing among different levels of government, central government, state government, and in some countries there is third level of government. For example, in Belgium, community government, and in India, Panchayati Raj system. In this chapter, we learn what is federalism, what are the features of federalism, how we can say that India is a federal country, and how actually federalism is practiced in our country. And at the end part of chapter, we learn about decentralization of powers in our country. Federations are contrasted with unitary system. Federalism is a system in which power is divided between union government and various constituent units. There are two levels of government. One, central government for entire country, and second, state or provincial governments for day-to-day administering of the states. Both these levels are independent to each other. Central government cannot pass order to state governments. These examples of these governments are Belgium, you have learnt in one chapter, India, USA. Under unitary system, either there is only one level of government or state governments are subordinate to central government. Central government can pass order to state governments. Example of these countries are Sri Lanka, China, and United Kingdom. Tiers of federalism. There are two or more tiers of government. Each tier has own jurisdiction about legislation, administration, and taxation. Because jurisdiction of each tier has been specified in constitution, so authority and existence of each tier is guaranteed by constitution. Constitution में लिखा हुआ है कि किस लेवल की गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, क्या क्षेत्राधिकार होगा, और इसी वजह से जो ये अथॉरिटी है और जो एग्जिस्टेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है. एंड फंडामेंटल प्रोविजंस कांट बी चेंज्ड बाय एनी गवर्नमेंट यूनिलेटरली. कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकती है. उसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स की सपोर्ट ज़रूरी है. इतना डिफ़िकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ईजी नहीं है बिल्कुल भी. कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर शेयरिंग को लेकर कोई डिस्प्यूट जो है वो अराइज होता है तो कोर्ट्स के पास पावर है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको एक्सप्रेस करने की, इंटरप्रेट करने की कि एक्चुअली व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड अस फ्रॉम फेडरलिज्म. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड फॉर each level of government. So, state governments are not at all dependent on central government for revenues. फंड्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने सोर्सेज भी हैं इनकम के, ताकि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग है जो उनके प्रोविंसेस की उसको एफिशिएंटली जो है कर पाएँ. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म: टू सेफगार्ड टू एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द नेशन. कंट्री को सेफ करना और कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना. एंड सेकेंड, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. फेडरलिज्म के ये टू ऑब्जेक्टिव्स हैं. आप इसको फीचर्स में भी ऐड करोगे और अलग से अगर आपसे टू ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं तो आपका ये डिफरेंट जो है ये अलग आंसर भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा. तो फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स जो है देश को एक तो रखना ही है, लेकिन रीजनल डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करना है. तो इन दिस वे वी कैन से जो फेडरलिज्म है वो दो चीज़ों पर आधारित है: म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. लोग इकट्ठा रहना भी चाहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं, तभी फेडरलिज्म पॉसिबल है. टू टाइप्स ऑफ फेडरेशंस. द एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन पावर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बिकॉज ये कंट्री के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर का बंटवारा किस तरीके से होगा, पावर्स का डिवीज़न कैसे होगा.
In this way, there are two types of federations: coming together federation and holding together federation. Under coming together federations, there are independent states coming together to form bigger unit. Means coming together में different states हैं जो एक क्लोज आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और एक बिगर यूनिट बना देती हैं. किस लिए? टू पूल देयर सोवरेनिटी एंड टू रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड एंश्योर देयर सिक्योरिटी. अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये सोवरेनिटी को पूल करती हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी गुम नहीं होने देती हैं, उसको भी बनाए रखती हैं. तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस आर USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड. Second type of federations are holding together federations. When a large country decided to divide its power in different levels, different states. जैसे अलग अलग एक ओवरऑल कंट्री है, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो अपने आप को अलग अलग जो है पावर को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करेगा, और ये जो स्टेट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लेवल की गवर्नमेंट बनेगी. इस तरह के फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस स्टेट गवर्नमेंट्स. कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट्स ज़्यादा पावरफुल होती हैं. इस तरह की गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल हैं बेल्जियम, इंडिया एंड स्पेन. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इफ़ वी डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, we can say that these features are correctly applied on India. इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी फीचर्स, लगभग सारी फीचर्स अब इंडिया में देख पाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स की यूनियन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं. देयर इज़ 3 tier सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर लोकल and provincial areas, and third level panchayati raj system for rural areas and municipality for urban areas. Constitution provides 3 tier distribution system of power sharing. मीन्स किस तरीके से जो ये पावर्स हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में बटी होंगी, लेजिस्लेटिव पावर्स. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का जोरिस्डिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का जोरिस्डिक्शन है. और इस तरीके से ये जो इंडिया है इसको एक्चुअली हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट कंटेन्स 3 lists: Union list, state list and concurrent list. Union list. Union list includes the subjects of national importance like defense of the country, foreign affairs, currency, banking. इन subjects पर only central government can make law because there is need of uniform system for entire country about these subjects. जैसे अगर कंट्री की डिफेंस की बात है तो पूरे कंट्री के बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, उसके लिए क्या चाहिए? आर्मी चाहिए या इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स. तो पूरे कंट्री के लिए एक फोर्स है जो पूरे कंट्री के बॉर्डर्स को सिक्योर करती है. स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. दीज सब्जेक्ट्स आर the important for state and local levels. State governments only can make law about these subjects. पुलिस देखा ना, इसमें पुलिस क्या है? हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, अलग अलग पुलिस है अलग अलग स्टेट के लिए. लेकिन यूनियन लिस्ट में क्या देखा था? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. तो पूरे कंट्री के लिए एक डिफेंस सिस्टम है. जो स्टेट लिस्ट है उसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. थर्ड लिस्ट इज concurrent list. This list includes subjects of
common interest of central and state governments. Examples are education, forest, trade unions, marriage, adoption, succession. दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और दोनों में डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ जो है वो लागू होगा. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावरफुल ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. वन मोर types of subjects are residuary subjects. The residuary subjects, what are the subjects which are not included in these three list? उनका क्या, जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, या they came up after the constitution was made, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए वो सब्जेक्ट्स, जैसे ई कॉमर्स, कंप्यूटर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. इसका मीनिंग क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है. कंकरेंट लिस्ट के वो सब्जेक्ट जहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होगा वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल होगा. और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो अभी हमने होल्डिंग टुगेदर एग्जाम्पल देखा था ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर मोर पावरफुल देन स्टेट्स. तो इंडिया में भी ऐसा ही है, बिकॉज इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. वीडियो के इस पार्ट में इतना ही. इन नेक्स्ट पार्ट यू विल सी हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया and also decentralization of powers in India.